One. Something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors. Tag number one is on the stage. Now, the turn of tag number two. Never let you go, never let me down. Tag number two. It's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Tag number two on the stage. Nah, 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 I won't give up. Nah, nah, nah. And now, next one is tag number, any guess? Tag number three. Let me love you. और इसके बाद टैग नंबर 4. टैग नंबर 4. Don't fall asleep at the wheel. We got a million miles ahead of us. Miles ahead of us. All that we need. जिनके नाम नहीं आ रहे हैं वो मायूस ना हो, क्योंकि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है. एक कंपटीशन है. नेक्स्ट वन इज टैग नंबर 6. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife. Never let you go, never let me down. Don't you give up. Nah, nah. और नेक्स्ट है टैग नंबर, हाँ जी, टैग नंबर कौन है? टैग नंबर 7. I won't give up. Nah, nah, nah. Let me love you. Let me love you. And next one is, I'm going to announce tag number 8. Tag number 8 is coming on the stage, and next one is tag number 9. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah, nah, nah. Let me love you, let me love you. Don't you give up, nah, nah, nah. टैग नंबर 9 के बाद अब चलते हैं टैग नंबर 11. They say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. ये है टैग नंबर 11, और टैग नंबर 11 के बाद हम बढ़ते हैं टैग नंबर 15 की ओर. टैग नंबर 15, कंटेस्टेंट नंबर 10, टैग नंबर 15. और इसके ठीक बाद टैग नंबर 17. I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen. I make And now 17 के ठीक बाद है टैग नंबर 19. शुक्रिया. और उसके बाद जो टैग नंबर है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अंकित संख्या, ये है 26. टैग नंबर 26. that's what we become. I won't let them break me down because I know. Tag number 26. And now 2 left. Those who have to come on the stage. Now the turn is tag number 27. Gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat और I
Now the last one is any guess? Tag number 14. 14. Now the turn is of Bhai Jayant. Will handle the stage of Beauty Queen. ओके तो ये है अभी टॉप 15। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए हमारी टॉप 15 के लिए। टॉप 15 गर्ल्स, यानी इन 15 में से ही अभी कोई चेहरा होगा जिसके सर पे ताज सजेगा। इन चेहरों में से ही कोई वो खूबसूरत चेहरा होगा। नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन आंसर राउंड एंड प्लीज हमारे साउंड की टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जजेस के पास वो माइक पहुंचा दें ताकि वो अपने सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ पर शुरू कर सकें। क्योंकि सबसे मुश्किल जो होता है ना वो ये वाला सेशन होता है कि इससे पहले सबने पूरी तैयारी की होती है, वॉक की तैयारी की होती है, अपना इंट्रोडक्शन की तैयारी की होती है, बट द क्वेश्चन आंसर राउंड जो होता है ना इसमें स्पेशली जजेस कुछ भी अभी पूछेंगे तो उसका आंसर एकदम से उनको आना चाहिए। तो गर्ल्स आई रिक्वेस्ट कि जिनसे भी जजेस पूछेंगे तो वो प्लीज़ आगे आएँ और आंसर करें। सो ऑल अप टू जजेस नाउ। जजेस का माइक प्लीज जरा चेक कर लीजिए। ऑन जजेस का माइक। जी Hello. Good evening, everyone. And congratulations. Now you all are in top 15, right? Okay, I want to know about, tell me, is this crucial round? What do you think? No, this is not a crucial round. This is very important round of any beauty pageant because this is the way only you can express your feeling. You can interact with so many people, right? So, wear a confidence of positivity. Okay, would you like to leave your impact on the stage? Yes? Okay. Now show me your broad smile. Yes, this is the way, okay? Be confident, don't be nervous. Language doesn't matter. जो कुछ भी बोलना है आपने अपने लैंग्वेज में बोलो, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो, लेकिन सभी के दिलों तक पहुंचनी चाहिए वो बात जो आप कहना चाहती हैं। हम आपको क्वेश्चंस देंगे, फिर इस बॉक्स के अंदर क्वेश्चंस हैं, रैंडमली आपने पिक करना है और उसका आंसर ऑन द स्पॉट देना है। ऑल द बेस्ट। ओके, रॉक द स्टेज। क्या बात है, इस बार थोड़ा सा हमारा ट्रेंड यहाँ पे चेंज हुआ है और क्वेश्चन जो हैं वो इस बॉक्स में आ रहे हैं। अब देखते हैं वो मुझे, अरे वाह अब मुझे गब्बर सिंह याद आ रहा है, देखे किसे क्या मिलता है, खुल जा सिम सिम। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट टैग नंबर 1। जब सामने है तो फिर दूसरे की तो बात ही नहीं करते। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टैग नंबर 1। अब देखते हैं इस पिटारे में से क्या सवाल निकल के आता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। रैंडमली, दिस इज रैंडमली क्वेश्चंस। ओके, मैं बोलकर बता देता हूं सवाल है, जरा ध्यान से सुन लीजिए। आप कहीं भी जाओ ट्रैफिक ही ट्रैफिक दिखता है, आप इस इशू को किस तरह देखती हैं और ये भी बताएं कि कैसे ट्रैफिक जैम का इशू खत्म किया जा सकता है। A very pleasant evening, judges. Thank you for the question. So I believe that traffic is a very प्लीज ऑडियंस, प्लीज लेट हर स्पीक, प्लीज सुनो लिसन टू हर प्लीज। भाई, एक मिनट ना, ट्रैफिक का सॉल्यूशन बता दें आपको। हाय 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 हाय। ओके, लेट देम स्पीक फर्स्ट। हाँ, जस्ट वेट, इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज लेट हर स्पीक। I request you all. So I believe that traffic these days have been increasing rapidly and it is a very crucial problem that we all face day to day. And I believe that for this we can do the firstly that the government and
us, we should park our cars in the parking slots and in the parking, not on the roads. And secondly, we should come from our houses a little bit early. As you all know that it is a lot of traffic these days, and there is tourist season as well right now. So we all face this problem day to day. So these are two things that I mentioned. And secondly, I believe that traffic is just because a number of vehicles every family has. So these days I've seen this trend Actually, hello, there is time limit. Please just make it short and Okay, meaningful. So these days, each person has at least 2 cars. So the footprint, carbon footprint is increasing, and global warming is also increasing. So please spread awareness and use less cars. Thank you so much. ma'am. Thank you so much. Take your seat. थैंक यू। ये हमारा पहला सवाल था और कंटेस्टेंट नंबर 1 थी। एंड नाउ वी हैव कंटेस्टेंट नंबर 2। प्लीज आप सेंटर में आ जाइए। तो देवी और सज्जनों, आइए देखते हैं कौन बनेगा करोड़पति का अगला सवाल। हमारे इस डब्बा जी, हमारे पास कंप्यूटर नहीं जी, हमारे पास डब्बा जी हैं। हमारे डब्बा जी में से देखते हैं अगला सवाल कौन सा निकल कर आता है। और सवाल है कि आपके साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें वो कौन सी है जो आपके हिसाब से सबसे बेस्ट है। Thank you for the question, judges. Good evening, judges. नमस्ते मनाली। तो मैं ये मानती हूँ कि सबसे ज़्यादा बेस्ट मैं ही हूँ, क्योंकि अगर मुझे किसी को यहाँ पर विनर बनते देखना होता तो मैं यहाँ ऑडियंस के बीच में भी बैठ के देख सकती थी। इसीलिए मैं ये मानती हूँ कि मैं ही सबसे ज़्यादा बेस्ट हूँ। धन्यवाद। क्या बात है, थैंक यू। टैग नंबर 2 एंड नेक्स्ट वी हैव टैग नंबर 3। ओके, तो अब देखते हैं कि हमारे इस पिटारे में से क्या सवाल निकल के आता है। मुझे तंबोला वाला फील भी आ रहा है। शेक 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 आफ्टर अ हैवी शेक। अरे वाह, सवाल काफी लंबा है भाई। और सवाल है, जीतने के लिए सभी आते हैं, आप भी यहां जीतने आई हैं, राइट? ओके, तो मेरा प्रश्न ये है कि मान लो अगर आप टॉप 10 या टॉप 3 में ना हो और आपको बिना इनाम और बिना क्राउन के घर जाना पड़े, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा और आप क्या संदेश लेकर यहां से जाएंगी? Good evening, judges, and thank you for the question. If I couldn't win, then I wouldn't mind it because I'm here to experience. I'm here to learn each and everything. And it doesn't matter about the crown because every girl wears an invisible crown. So, if I go back without the crown, I will take the knowledge and learning from what I learned here in the grooming session and here in the pageant. And I will spread it out in the entire world and empower women. Thank you so much. थैंक यू। ये थी टैग नंबर 3। भाई कितने कॉन्फिडेंस है यार इन गर्ल्स में। तालियां जोरदार होनी चाहिए। कितने आराम से ये लोग आंसर कर रही हैं, सीरियसली। एंड नेक्स्ट वी हैव टैग नंबर 4। प्लीज वेलकम टैग नंबर 4। तो लीजिए, कौन बनेगा करोड़पति का अगला सवाल 1 लाख रुपए के लिए। और सवाल है, क्या मनाली आपको पसंद है? अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे मनाली घूमना है, तो आप मुझे कौन कौन से 5 टूरिस्ट प्लेस दिखाना चाहेंगी? Good evening, ladies and gentlemen present here. Good evening, judges. Actually, I'm from Mandi, so I don't know where is the best place in Manali because it is my first time to come Manali, so I don't know the places. But the Manali is beautiful place. I think I name a Vishist. I think I only one name in my mind.
But I think this question give me so much confidence that when I ever come in Manali and again, so I definitely मैं यहाँ पे ज़रूर घूमना चाहूँगी और यहाँ के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि I am the person who exploring the world and exposing to myself because when you learn from yourself, so that's you inspired all over the world because inspiration is come within yourself. That's how you can inspire this whole world. Thank you so much. Thank you, tag number 4. आप लोग मनाली में कहाँ घूमना जाना चाहेंगे भाई? बाहर से कौन आया है? हाँ, हडिम्बा माता जाए, मॉल रोड घूम लिया, सोलंग नाला जाए, रोहतांग पास घूम आए, अरे वन विहार घूमा, मजे है भाई आप सबके तो. चलिए, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट. वी हैव आफ्टर 4 वी हैव 5 नहीं है, 6 है. ओके, टैग नंबर 6. स्वागत नहीं करोगे तालियों के साथ? तो लीजिए कंप्यूटर जी, ओ डब्बा जी, सॉरी डब्बा जी, नेक्स्ट सवाल. अब थोड़ा सा जरा ध्यान से सुन लीजिए. What difference do you see in your generation and your grandmother's generation? यानी कि आप अपनी जनरेशन में और अपनी दादी माँ की जनरेशन में क्या डिफरेंस देखती हैं? Good evening, everyone. Thank you for the question, judges. So, the greatest difference that I've seen between my generation and my grandmother's generation is definitely social media. We seek a lot of glamour these days, whereas our grandparents used to stay in peace, calm. Secondly, we are behind money, but when we see our grandmothers, or the generation of my grandmother, so they seek peace and self-worthness. So they find the life worth. But whereas our generation is behind social media, the glamour and the money, in fact, the peace and the happiness always stayed behind. But yeah, thank you so much. तो ये थे टैग नंबर 6. थैंक यू. क्वेश्चन था इंग्लिश में और इन्होंने प्यारे से इंग्लिश में दिया, लेकिन मेरे साथ हमेशा ना वही बात आ जाती है कि कोई आंखों से बात कर लेता है, कोई आंखों से मुलाकात कर लेता है, कोई आंखों से बात कर लेता है, कोई आंखों से मुलाकात कर लेता है. बहुत मुश्किल होता है जवाब देना जब कोई मेरे साथ इंग्लिश में बात कर लेता है. तो नेक्स्ट वी हैव टैग नंबर 7. प्लीज वेलकम टैग नंबर 7. तो देवियों सज्जनों, अगला सवाल हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे. ओके, एंड द क्वेश्चन इज, ग्रूमिंग टाइम में जो सीखा उसका कितना % आपने स्टेज पर दिया? हर ग्रूमर जीतने के टिप्स देते हैं. मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर यहां आपको क्राउन ना मिल सके, आपको खाली हाथ जाना पड़े, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगी? Good evening, judges. Good evening, Manali. Thank you so much for the questions. I'm really sorry. What's the question? Will you please repeat? Okay. So sorry. I think मैंने अपना बेस्ट दिया है because मैम ने बहुत अच्छे से ग्रूमिंग कराई है हमारी. मैम ने नॉट ओनली कि बाहर से हमारा ग्रूमिंग कराया कि आपको ऐसे वॉक करना है, वैसे वॉक करना है, बट इनर सेल्फ. मैम ने हमें एक चीज़ सिखाई है कि सेल्फ लव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो हमने बहुत अच्छे से सीखा है. अगर खुद से प्यार करो तभी आप आगे बढ़ पाओगे. Jayant, kindly show her the question once again, please. क्वेश्चन है कि ग्रूमिंग टाइम में जो सीखा है उसका कितना % आपने स्टेज पर दिया? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में साथ है कि ग्रूमर जीतने के टिप्स देते हैं, लेकिन ये जानना चाहेंगे कि अगर यहां आपको क्राउन ना मिल सके, आपको खाली हाथ जाना पड़े, तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे? ऑब्वियसली मैं पहले थोड़ा सा तो दुखी होंगी, जायज़ है मैम वो चीज़ तो, बट वही चीज़ मैंने अभी बोली, मैम ने सिखाया है कि सेल्फ लव और स्माइल, हमेशा स्माइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
क्योंकि जो डिजर्विंग है वही जीतता है, बाकी वही होगा मैम, जो डिजर्विंग है वही जीतेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू टैग नंबर 7 एंड नेक्स्ट वी हैव टैग नंबर 8। जरा जोरदार तालियां और शोर हो जाना चाहिए भाई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है, आप वो स्लिप मुझे दीजिए और जरा फोकस कीजिएगा कि मैं क्या कहूंगा, ओके? वरना लड़कियां इसे पढ़ने में बिजी हो जाती हैं और देखती नहीं है कि मैं बोल क्या रहा हूं। अब जरा ध्यान से सुन लीजिए। सिंगल यूज प्लास्टिक पर सभी तरफ से बैन लगाए जाने के बाद भी सिंगल यूज प्लास्टिक कम होता नहीं दिख रहा है। आप बताएं कि इसे कैसे रोका जाए, सिंगल यूज प्लास्टिक को कैसे रोका जाए? Good evening, judges. Hello, Manali. How are you all? Thank you for the question, ma'am. So, plastic, we see plastic everywhere in our day-to-day life. Everything, you using chairs, you using cameras, you using everything that is of plastic. Even this mic is also of plastic. So, we cannot get rid of plastic, but what we can do is, we can just reuse it, we can recycle it. So, there are 3 R's for plastic, for reusing the plastic and to use it very elegantly. Thank you. Thank you, tag number 8. And after 8, we have tag number 9. Please welcome the girl with beautiful eyes, tag number 9. इनकी आंखों में खो गया, मैं भूल गया कि क्या कर रहा था। Okay, the question is, what can you tell young boys and men about gender equality? Gender equality के लिए young boys और पुरुषों को आप क्या कहना चाहेंगे? Thank you for this beautiful question. Hello everyone. तो मैं young generation को, young boys को कहना चाहूँगी, सभी बहुत अच्छे हैं, इंडिपेंडेंट हो जाएं, सभी गर्ल्स बॉयज सभी। मैं सभी को चाहूँगी कि इंडिपेंडेंट हो, यहाँ वहाँ की बातों से ध्यान हटा करके अगर आप अपनी मेंटल पीस को बढ़ाने पे ध्यान दें तो देश की तस्वीर कुछ और होगी। और रही बात, माना जाता है कि लड़कियों को लड़कों से कम समझा जाता है या इनके साथ छेड़छाड़ की जाती है, तो इसे भी कंट्रोल किया जा सकता है। वो कहते हैं ना, डोंट टीच अ गर्ल व्हाट टू डू, वेयर टू गो एंड हाउ टू ड्रेस अप, टीच योर सन टू रिस्पेक्ट हर। मैं इस अभद्र शब्द के लिए माफी चाहूंगी, लेकिन अगर सभी माँ बाप अपने बच्चों को बचपन से ही सिखा दे कि लड़की माल नहीं घर का मान होती है, तो देश की तस्वीर जरूर बदलेगी। थैंक यू सो मच। ये थे टैग नंबर 9 और आफ्टर टैग नंबर 9 वी हैव टैग नंबर 11. प्लीज वेलकम टैग नंबर 11. And the question for tag number 11 is, आज के जनरेशन की बेस्ट क्वालिटी क्या है और वर्स्ट क्या है? गुड इवनिंग जजेस। तो मैं ये कहना चाहूँगी, आजकल के जेंडर की बेस्ट क्वालिटी ये है कि हम फास्ट फॉरवर्ड हैं, हम जल्दी जल्दी सोचते हैं और जो भी काम हो बहुत सटीक तरीके से करते हैं। बट जो इसकी गलत क्वालिटी है वो ये है कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना भूल गए हैं। हम चाहते हैं कि अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो दूसरा जो हमारे साथ काम कर रहा है वो नीचे रहे, ना कि हम ये चाहते हैं कि साथ में तरक्की करें और देश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू। That was tag number 11. And next, after 11 we have 12, 13, 14. Tag number 14. तो अगला सवाल हमारे पास पहुंच चुका है, सुन लीजिए। If there is one thing you would like to change about yourself, what it would be? आप अपने बारे में अगर कोई एक चीज बदलना चाहें वो क्या होगी?
A very pleasant good evening, judges. Thank you for the question. I wouldn't like to change anything about myself because that is what makes me unique. That is what makes me, me. So that's it. Thank you so much. Thank you, tag number 14. Next, we have tag number 15. Please welcome tag number 15. Okay, the next question is, what steps can you suggest to boost economy of Himachal? हिमाचल की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए आप क्या स्टेप्स लेंगी? थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन. हिमाचल की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए मैं स्टेप्स लूंगी कि हमें एक साथ काम करना चाहिए और अपने देश को, अपने स्टेट का नाम रोशन करना चाहिए. Thank you so much. Thank you, tag number 15. And next we have tag number 17. Please welcome tag number 17. देखते हैं क्या है हमारा अगला सवाल. And the question is, what will you do for women and girls of Himachal if you win? अगर आप जीतती हैं तो आप हिमाचल की गर्ल्स और महिलाओं के लिए क्या करेंगे? थैंक यू सो मच फॉर द क्वेश्चन मैम. अगर मैं ये टाइटल जीतती हूँ तो सबसे पहले मैं हिमाचल की गर्ल्स के लिए सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करना चाहूँगी, बिकॉज मुझे ये लगता है कि बीइंग माई सेल्फ अ स्मॉल टाउन गर्ल फ्रॉम शिमला, कि यहाँ पे गर्ल्स सामने नहीं आती है, डरती है. एंड एज इट इज सेड, फियर इज नॉट गुड फॉर ग्रेट. So I feel girls should stand for themselves. They should stand for their dreams. And I think इसी तरह से self awareness अगर girls में होगी तो वो सामने ज़रूर आएगी और अपनी dreams ज़रूर पूरे करेगी. Thank you so much. Thank you, tag number 17. And next we have tag number 19. Please welcome tag number 19. और आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ी देर के बाद, इस राउंड के बाद, अभी हमें शायद हो सकता है कि इसमें से टॉप 6 थोड़ी देर में आप सबके बीच में आएंगे, उनसे फिर सवाल जवाब होगा. लेकिन आपको नचाने के लिए ठाकुरदास राठी जी भी हमारे साथ बस कुछ ही देर में यहाँ पर होंगे. उनकी नाटियों में झूमने के लिए भी आप सब तैयार रहिएगा. नेक्स्ट वी हैव टैग नंबर 19. The question is, what is more important, being rich or wise? इसमें से आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, अमीर होना या समझदार होना? Thank you for the question. I believe being a wise individual is more important for me, because a wise individual know how to believe in themselves and they can go forward and achieve their dreams by believing in themselves and through positivity. Richness not always bring wealth. Rich only bring wealth, but mental peace and stability is more important. Thank you. Thank you, tag number 19. और 19 के बाद we have tag number 26. And the question is, what is the significance of Srimad Bhagavad Gita for today's generation? आज की जनरेशन के लिए श्रीमद् भगवत गीता का क्या महत्व है? सभी पे मेरा प्यार भरा नमस्कार. गुड इवनिंग जजेस. मैम, मुझे लगता है मेरी जनरेशन के हिसाब से सभी को भागवत गीता पढ़नी चाहिए. जो हमारी पिछली जनरेशन थी उन्हें पता था क्या चीज़ किस तरह से होती है. जो हमारी जनरेशन है वो सोशल मीडिया में डूब चुकी है एक तरफ से, और जो खासकर उनके पेरेंट्स हैं उन्हीं का ही कहना नहीं मानती है. मेन बात यही है. और जो हमारे पूर्वज के बच्चे थे वो अपने पेरेंट्स का कहना मानते थे, उन्हें एज अ गॉड गिफ्टेड मानते थे. धन्यवाद. थैंक यू. टैग नंबर 26. और इसके बाद we have last but not the least, एक बार जोरदार तालियां, टैग नंबर 27 we have. सवाल 2 है यहाँ पे और अब देखते हैं इनकी किस्मत में कौन सा सवाल आता है.
Okay, the question is, if there is one thing you would like to change about yourself, what it would be? आप कोई एक चीज अपने बारे में अगर बदलना चाहें अपनी पर्सनैलिटी में, क्या होगा? Good evening, Manali. Good evening, judges. If I want to change anything about myself, it would be nothing. Because it makes me different from the crowd. It's my personality. It's me. I will change nothing about myself. Thank you. Thank you. Tag number 27. Please have your seat. और अभी यहाँ से हम विदा लेते हैं और टॉप 6 मैं जजेस से पूछना चाहूँगा क्या अभी टॉप 6 मिलने वाले हैं? Hello. Yeah. Thank you so much for your sincere answer. And please, wish you all the best for top 5, maybe top 6. All the best. चलिए थोड़ी देर में रिजल्ट्स हमारे बीच में होंगे. म्यूजिक प्लीज. You are like the oxygen I need to survive. Your love ain't it totally me. I am so obsessed. I want to chop your kobe. Nobody never can wish you. Upon a make I see you. You're my love man since take you make a bad man sing. और अभी मैं स्टेज पे इनवाइट करना चाहूंगा जो विंटर क्वीन की हमारी बैक स्टेज टीम है जिन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है यहाँ तक इन सबको पहुंचाने में. प्लीज वेलकम मिस्टर परनीत ठाकुर. मिस्टर परनीत ठाकुर, म्यूजिक प्लीज. मिस्टर परनीत ठाकुर, मिस्टर अजय नेगी. जोरदार तालियां चाहूंगा मैं. मिस्टर परनीत ठाकुर, अजय नेगी, दिया, रिबेका, मोनिका, स्नेहा, दीपिका एंड तान्या. ये सभी प्लीज एक बार स्टेज पर आ जाएं. ये विंटर क्वींस के साथ इन्होंने पूरा कोऑर्डिनेट किया इस इवेंट को इतना खूबसूरत बनाने में. इन सब का बहुत बड़ा रोल है. ये सभी चेहरे मैं चाहूंगा एक बार बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए इन सभी के लिए. We were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Thank you.